Hello students, we are discussing about physical features of India in Geography chapter 2. In this chapter we have discussed about the mountain, plain, plateaus and deserts. So today we will discuss about the coastal plain and island. These two topics we have to be discussed here. So coastal plain. Firstly we will try to understand where its location. It is the south part of India, and here we know Western Ghat and it is our Eastern Ghat, and here the Bay of Bengal and here Arabian Sea. So between the Eastern Ghat and Arabian Sea we find a plain area, and here also between the Western Ghat and Arabian Sea we find the plain area. These plains is called as the coastal plain. So in definition, or you can define in words, coastal plain is a flat, low-lying piece of land next to the ocean के ओशन से लगा हुआ एक बहुत ही फ्लैट एरिया हमको दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड एज द कोस्टल प्लेन. To the east and west of peninsular plateau, two narrow strips of plain lands are found. So the peninsular part we already know कि पेनिनसुलर पार्ट्स आपके वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स के थ्रू जुड़े होते हैं, आपकी बाउंड्रीज बनती हैं, और इन्हीं से लगा हुआ हमारा जो ओशियन बेस्ड एरिया या प्लेन एरिया है दैट इज कॉल्ड द. तो यहाँ पे टू स्ट्रिप्स हमको मिलेंगी, एक आपको ईस्टर्न घाट से बिलोंग करती है और एक आपके वेस्टर्न घाट से बिलोंग करती हुई. सो हियर वी कैन से दैट द कोस्टल plain have the two land masses. First is the eastern coastal plain and western coastal plain. So let me discuss these two features. Eastern coastal plain, it is a landmass lying between the Eastern Ghat and the Bay of Bengal. ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में ये कोस्टल प्लेन हमको मिलती हैं. इसके नॉर्थ में या इसके नॉर्दर्न पार्ट्स को हम नॉर्दर्न सरकार कहते हैं. इट मीन्स दिस एरिया इज कॉल्ड नॉर्दर्न सरकार, एंड इसका साउथ एरिया कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है. सो यू शुड हैव टू बी लर्न. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का ऊपरी एरिया मीन नॉर्थ पार्ट्स नॉर्दर्न सरकार कहलाएगा और इसका निचला हिस्सा हमारा कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है. एंड हियर दिस प्लेन इज formed by some rivers deposition. In this river, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri are the most famous. These four major rivers have to be deposits, and so that this coastal plain is formed here. And in this region we find a very famous lake called as the Chilka Lake, which is located in Odisha, and it is the largest salt water lake of India. कि इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक कही गई हुई है. तो यह इसे हमें दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये लैंड मास ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है. इसके नॉर्थ साइड को नॉर्दर्न सरकार कहेंगे और साउथ साइड को कोरोमंडल कोस्ट कहेंगे, और ये प्लेन महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर से बनी हुई है. इस एरिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी सॉल्ट लेक है दैट इज द चिल्का लेक. नेक्स्ट थिंग्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. इट इज़ द लैंडमास लाइंग बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी. कि आपके वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में मिलती हैं. इसके नॉर्थ साइड में कोकर कहा गया है. इसके नॉर्दर्न पार्ट्स को, मीन्स ये एरिया आपके नॉर्दर्न बीच का एरिया आपका कन्नड़ प्लेन कहलाता है, और साउथ साइड हमारा मालाबार कोस्ट कहलाता है. सो दीज थ्री टू पॉइंट्स आर शुड बी रिमेंबर कि इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी, एंड इन इट्स नॉर्दर्न पार्ट्स इज कॉल्ड एज द कोंकण, सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज द कंकड़, एंड south part is known as the Malabar coast. Next thing is our island. So our next landform is the island, and in India there are the two island groups are here. First is Lakshadweep and second is the Andaman and Nicobar Island. So firstly we will discuss about the Lakshadweep.
It is composed of the small coral islands. कि लक्षद्वीप आपके बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है और ये आपके कोरल आइलैंड से मिलकर बना हुआ है. बट शुरुआती समय में इसे लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था. बट इन 1973 it is all the parts is combined and give a name as the Lakshadweep. It has a great diversity of flora and fauna. Here we find the flora and fauna. So many species are here we find. Next is Andaman and Nicobar Island. So here it is located in the Bay of Bengal and it is divided into two parts, north side, north and south. North part is called as the Andaman and south part is called as the Nicobar. So here we have discussed about the different kinds of landforms in India. The last topic of this chapter is diverse physical features and future possibility of developments. कि इंडिया में हमारी जो डाइवर्सिटी है फिजिकल फीचर्स को लेकर वे हमें किस तरह से आगे डेवलपमेंट्स की पॉसिबिलिटी को बढ़ाती हैं. सो लेट वी हैव टू बी डिस्कस देयर द फोर रीजन वी फाइंड हियर. फर्स्ट, माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ. आपका माउंटेन एरिया वाटर सोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है एंड हियर वी फाइंड द फॉरेस्ट ऑल्सो. आपको माउंटेन्स हम सब जानते हैं कि ये आपके वाटर सोर्स का एक बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है और यहाँ पर फॉरेस्ट भी हमें दिखाई देती हैं. नेक्स्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रैंडरीज ऑफ द कंट्रीज. दे प्रोवाइड द बेस ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन. कि नॉर्दर्न प्लेन्स विच आर मेड अप ऑफ द फर्टाइल सॉइल्स, सो इट इज़ द सोर्स ऑफ द ग्रैनरीज. ये हमें अनाज बहुत ज़्यादा अवेलेबल कराती हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस की कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है. और अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में भी हम बात करते हैं तो मैक्सिमम सिविलाइजेशंस आपकी प्लेन एरिया में ही दिखाई पड़ती हैं. द प्लेट्यू इज अ स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स विच हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया. कि प्लेट्यूज पार्ट्स हमारे मिनरल्स के लिए स्टोर हाउस होते हैं और इन मिनरल्स का यूज़ हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. हम उन मिनरल्स का प्रयोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में करती हैं. एंड इंडिया की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनरल्स हमें अवेलेबल होते हैं और उन्हें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के तौर में जब हमने अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स करना शुरू किया तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं और इन फ्यूचर इट्स ऑल्सो विल बी हेल्पफुल फॉर अस. द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़. ये कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप्स ये हमें फिशिंग साइट्स के रूप में ज़्यादातर देखने को मिलेंगी या फिर ये हमारे लिए पोर्ट होती हैं जहाँ पर हम बड़ी बड़ी जहाज़ें हमारी आकर रुक सकती हैं. वहाँ पे हम उनको अपनी जो भी सामान है जो हमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है उसको हम अवेलेबल करा सकती हैं. सो हियर दीज आर द फिजिकल फीचर डाइवर्स इन फिजिकल फीचर इज हैज़ द पॉसिबिलिटी फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट्स. सो इट इज़ द total complete explanation of your chapter.